Jeep. Not just a Jeep, but more than just an automobile brand. A badge of honor, loved by a globally growing community who live the Jeep life every day. The brand which has been historically connected to freedom, adventure, authenticity, and passion. These are the core values which are embodied in the DNA of every Jeep SUV. The legacy which is now running for over 83 years. The brand who served the battle and was born for the adventure. The brand who took the bullets and saved the army, proving its harshest and unimaginable build quality. The brand, the legacy which is forged in fire. This is Jeep, where the spirit lives on. Today, Jeep is more than just a vehicle, it's a lifestyle. It portrays a passion for exploration, a love for outdoors, and a desire to challenge limits. The Jeep community is a global brotherhood of enthusiasts who share a deep connection to the brand. Whether you're conquering a rocky trail, taking off on a family camping trip, or simply cruising down the highway, a Jeep is more than just a transportation. It's a statement of individuality, a symbol of adventure, and a legacy that continues to inspire. So it's not just a Jeep, it's the original since 1941, which says, go anywhere, do anything. So hello everyone and welcome to AVG Automotive and welcome to the Jeep saga, where I'm going to cover and review all the 4 Jeep SUVs in the market, beginning with the entry-level Compass, then the Meridian, which is just a long version of the Compass, then the latest 2024 iconic Wrangler, a direct descendant from the original, from where it all started, to the flagship and luxurious, the Grand Cherokee. But hold on. Before starting the review, let me thank to the Landmark Jeep from Andheri for letting us shoot in their dealership premises, and a very special thanks to Mr. Abhishek Pawar, the senior sales consultant from Landmark Jeep Andheri, who allowed us and granted us the permission to shoot, and not only that, but also taking out the time for playing the part in our Jeep review videos. So let me introduce you to Mr. Abhishek Pawar to speak about himself. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक पवार। आज मैं लैंडमार्क शोरूम अंधेरी पे खड़ा हूँ और मेरा यहाँ पे डेजिग्नेशन है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर और पिछले 8 साल से मैं यहाँ पे हूँ। 2017 से मैं यहाँ पे हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जीप के बारे में। और आज मैं डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूँ सारे वेरिएंट्स के। जैसा कि हमारे सामने ग्रैंड चेरोकी है, सामने कंपस है, उसके बाजू में मेरिडियन है और रैंगलर है। तो सारी गाड़ियों के बारे में डिटेल वीडियो रिव्यू होगा आज, और प्रॉपर रोड साइड वीडियो भी होगा, शोरूम का भी वीडियो होगा। तो गाइस वीडियो को देखते रहो, मज़े लेते रहो। और दूसरा चीज़, जीप के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा। जीप एक ऐसा प्रोडक्ट है कि 1941 से जीप पूरे वर्ल्ड वाइड में चल रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये सेम प्रोडक्ट हम लोग 43 राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे बेस्ट ये गाड़ी की खासियत अगर मैं बोलूँ तो बिल्ड क्वालिटी इतनी सुपर्ब है कि 63% ट्रिप स्टील, 83% इसमें गैनोलाइज स्टील हमने यूज़ किया हुआ है। जो आज छोटी छोटी चीज़ों का अगर पैनल खोल के भी देखेंगे आप तो आपको एक्चुअल मालूम पड़ेगा कि इसका कोई भी जगह पे स्पॉट वेल्डिंग नहीं है। जहाँ पे हर एक ब्रांड्स में अगर आप देखोगे तो जो स्पॉट वेल्डिंग की वजह से 1-2-3 साल में रस्टिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल रस्टिंग नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप लॉन्गर टाइम तक ये प्रोडक्ट रख सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पे एक वीडियो है, तो वो वीडियो भी आपको डिटेल वीडियो भी आपको दिखाएंगे। 1941 से सबसे पहले जीप विलीज लॉन्च हुई थी। उसके बाद वेरिएंट अलग अलग वेरिएंट्स लॉन्च किए थे। तो सबसे पहले 1941 की जो विलीज थी वो वर्ल्ड वॉर जीप जो अमेरिका का जो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ पे वो यूज़ हुआ था। तो आप सोचिए वो कंपनी की प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि जीप एक नॉर्मल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीप एक ऑफ रोडर है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जीप एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ये खुद हम रास्ते बनाते हैं। आपको 4x4 लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सुपीरियर प्रोडक्ट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ग्रैंड चेरोकी के सामने खड़ा हूँ। जीप, कंपस हो गया, मेरिडियन हो गया और रैंगलर हो गया, सारी गाड़ियाँ अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ में और एक जो मेरे फ्रेंड है वो आए हुए हैं, जो आपको डिटेल वीडियो बनाएंगे और ओजी जीप के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।
तो उनका यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल का नाम मैं बोलूँगा AVG। आप सर्च करेंगे AVG तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल जीप के बारे में डिटेल वीडियो वहाँ पे आपको दिखेंगे, और आप ज़रूर आपने देखे भी होंगे काफ़ी उनके वीडियोस, तो बहुत ज़बरदस्त रिव्यू करते हैं। और उनका पूरा नाम है अमय विजय गावड़े। तो उनका चैनल का नाम फिर से बोलूँगा AVG, जो उनका शॉर्ट फॉर्म नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो AVG उनका यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज़ उनको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। तो गाइज़ मैं आप सबको बोलूँगा, मैं भी उनका साथ दे रहा था ये वीडियो में, आप सब ने तो मुझे देखा ही है। मैं यहाँ पे बहुत सारा उन्होंने भी मेरे को हेल्प किया, मैंने भी उनको काफ़ी हेल्प किया वो वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द से जल्द अगर जिसको भी जीप की टेस्ट ड्राइव लेनी है तो मुझे आपके घर पे बुलाए, ऑफिस पे बुलाए, या तो फिर अगर आपको जैसा हमने यहाँ पे करके दिखाया, अगर वो सब एक्टिविटीज़ आपको देख करनी है, जैसे मैं 80 के 90 के स्पीड में गाड़ी भगाता हूँ, हैंड ब्रेक खींच के दिखाता हूँ, जो चीज़ आप यहाँ पे मैं अंधेरी जुहू में हमारा जो शोरूम है वहाँ पे प्रॉपर्ली आपको दिखा सकता हूँ। डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के दिखाता हूँ, जिसमें मैं सस्पेंशन बताता हूँ, जिसकी क्या, जैसे हमारे यहाँ पे हाईवे एयरपोर्ट रोड है, हमारा जो बर्फ़ी वाला ब्रिज जो नया खुला है, तो वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हैं 120 130 के स्पीड पे चला सकते हो एयरपोर्ट रोड पे। तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको यहाँ आना होगा, या तो मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर ये डिस्क्रिप्शन पे है, और प्लस यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा है, तो आप मुझे कॉल करें। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू नाउ। So this is the all new 2024 Jeep Compass। अवेलेबल है 6 वेरिएंट्स में, स्पोर्ट, लॉन्जिट्यूड O यानी ऑप्शनल, तो लिमिटेड O, ब्लैक शार्क O और मॉडल S O। और इन्हीं के अंदर और भी सब वेरिएंट्स है, जैसे मैनुअल या ऑटोमेटिक को चूज करने का ऑप्शन, ऑप्शनल या नॉन ऑप्शनल को चूज करने का ऑप्शन, और कुल मिला के 14 वेरिएंट्स के ऑप्शंस है। अवेलेबल है सिंगल टोन और ड्यूल टोन दोनों कलर ऑप्शंस में। तो बेस वेरिएंट्स जैसे स्पोर्ट, लॉन्जिट्यूड और नाइट ईगल वाले वेरिएंट्स में आपको सिर्फ सिंगल टोन कलर्स देखने मिलेंगे, और वेरिएंट्स जैसे लिमिटेड, ब्लैक शार्क, मॉडल SO में आपको ड्यूल टोन कलर्स देखने मिलेंगे। और सिंगल टोन के और ड्यूल टोन के कलर्स स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट्स में। कलर्स है पर्ल वाइट, सिल्वरी मून, ब्रिलियंट ब्लैक, एक्सोटिका रेड, ग्रिगियो मैग्नेसियो ग्रे, टेक्नो मेटालिक ग्रीन और गैलेक्सी ब्लू। और सिर्फ नाइट ईगल वाले वेरिएंट में आपको 3 ही कलर्स देखने मिलेंगे। कलर्स है पर्ल वाइट, एक्सोटिका रेड और ब्रिलियंट ब्लैक। So the one which you are looking here is in silvery moon and the one which we drove is in pearl white. Let's start with the front profile now. बम्पर के लोअर एंड पर मिलती है ये लिप डिजाइन स्कर्टिंग, उसी के ऊपर है ये लोअर वेंटिलेशन रेडिएटर ग्रिल। ऊपर यहाँ प्लेस किया गया है इसका LED फॉग रिफ्लेक्टर लैंप, concealed within a nice black gloss plastic strip which again has the ventilation for the radiator. Coming to the headlights, which are the Jeep Performance LED headlights which comes with LED indicators and LED performance projectors. यहाँ सेंटर में है इसकी ये आइकॉनिक जीप 7 स्लॉट ग्रिल, जिसके ठीक सेंटर में है ये कैमरा ऑन एंगेजिंग द गियर और ऑल्सो बाय टैपिंग द कैमरा बटन। 2 टाइप के व्यूज मिलते हैं, फ्रंट क्रॉस पाथ व्यू विच इज बेसिकली 180 डिग्री व्यू, और दूसरा है नॉर्मल फ्रंट व्यू विच इज अ 90 डिग्री व्यू, जिसके साथ बताया गया है टॉप व्यू विच इज बेसिकली अ 360 डिग्री व्यू। प्लेन सा बोनेट है विद जीप लोगो प्लेस्ड राइट इन द सेंटर, और वॉशर स्प्रेज भी बोनेट पर ही पोजिशनड है। कमिंग टू इट्स वाइपर्स, जो कि एरो डिजाइन ट्विन ब्लेड रेन सेंसिंग वाइपर्स है विद वाइड वॉशर स्प्रेज, जिनका स्प्रे बहुत ही बढ़िया है, क्लीनिंग ऑलमोस्ट 95% ऑफ द विंडस्क्रीन। और यहाँ विंडस्क्रीन के टॉप पर प्लेस किया गया है इसका ये रेन सेंसर, जो कि पानी के गिरते ही ऑटोमेटिक वाइपर्स को एक्टिवेट करेगा अगर अंदर से वाइपर्स ऑन हो तो। Now moving towards the side profile of the SUV, and this is how it looks from the side. Nice and huge side glass areas जो कि बहुत ही अच्छी visibility देता है while driving. Side ORVMs जो कि electrically retractable है, adjustable है with auto power folding, with integrated LED turn indicators and also the camera placed in the bottom of the ORVM. Side door handles which are body colored, also with the request sensor button on it. Fuel opening lid जहाँ से आप इसका DEF और एड ब्लू लिक्विड और डीजल भर सकते हो, और ये कैपलेस फ्यूल फिलर है। कंपास की बैजिंग
embossed on the bottom of the driver's side door. और इसमें आते हैं ये 225x55 R18 inch 98V न्यू ड्यूल टोन मल्टीस्पोक मशीन्ड एलॉयज. सो 98 यानी आपके टायर का मैक्सिमम लोड इंडेक्स रेटिंग और V यानी आपके टायर का मैक्सिमम स्पीड हैंडल करने का रेटिंग. तो 98 यानी इसका पर टायर मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है 750 किलोग्राम्स का, और V यानी ये टायर्स 149 mph या 240 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड हैंडल कर सकते हैं. Now moving towards the rear profile of the SUV, and this is how it looks from the rear. So top पर यहाँ है spoiler with high mounted stop lamp, rear wiper with washer which obviously I can't spray inside the showroom, and also with the rear defoggers. Rear light panel with integrated turn indicators, stopping lamp, and with the reverse lights in it. Jeep logo placed right in the center and Model S badging on the right side. Rear view camera placed right in the center जो कि रिवर्स गियर को एंगेज करने पर कुछ ऐसे व्यू देता है. 90 degree view with top view and the total 180 degree view, and third is the only 90 degree view. ये इसके rear fog lamps positioned at the bottom of the rear bumper, और पीछे यहाँ दिए गए हैं इसमें 2 नहीं 3 नहीं बट 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स. कमिंग टू द रूफ विच इज ब्लैक कलर्ड. रूफ पर मिलता है ये इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, नाइस ह्यूज पैनोरामिक ग्लास रूफ, और यहाँ पीछे शार्क फिन एंटीना. नाउ लेट्स गेट इनटू द इंटीरियर नाउ, बट बिफोर गेटिंग इनटू द इंटीरियर, this is how the key looks. The unlock button, the lock button and the trunk opening button on pressing twice. और ये है इसकी emergency key in case of any emergency or when the key battery drains. Now let's access the interior and start with its door panel. इसमें है keyless entry feature with start stop button. So door से शुरू करते हैं. Door panel covered है black plastics में, black gloss plastics, और बीच में है कुछ black leather treatment. यहाँ टॉप पर प्लेस किया गया इसका है डोर ओपनिंग लीवर विद 2 मेमोरी सीट बटन्स. सेंटर में है इसके ORVM के कंट्रोल्स और विंडो के स्विचेस विद ब्लैक लेदर इंसर्ट्स एंड विद हैंडरेस्ट फॉर ड्राइवर्स विद नाइस वाइट स्टिचिंग ऑन डोर ट्रिम. डोर पॉकेट्स टू कीप बॉटल्स इन कार क्लॉथ्स, और यहाँ नीचे है इसके अल्पाइन के स्पीकर प्लेसमेंट विद अल्पाइन ब्रांडिंग ऑन इट, और यहाँ डोर की एंट्रेंस पर जीप की स्कफ प्लेट. So let's talk about the interior now. So this is how the 2024 new Jeep Compass dashboard looks like. A nicely laid all black interiors wrapped in all black leather with white contrast stitching, with this 10.1 inch of touchscreen infotainment display elevating and complementing the premium ambience of the SUV and making every ride feel legendary and special. Driver side sun pad with vanity mirrors and lights, and also with the expandable option. Passenger side sun pads too with vanity mirrors with lights and with the expandable option. बीच में ceiling control panel, yellow cabin lights है on both the side for passengers and driver. Trunk opening button positioned here. The control switches for cabin lights on opening of the door, and this is the sunroof sunshade switch, और उसके बाजू में है ये sunroof glass panel का open करने का switch. इसमें मिलता है ये auto dimming IRVM which is inside rear view mirror, nice and slick AC design with the chrome line running in the center, nice white contrast stitching in the center of the dashboard जो कि डैशबोर्ड को एक प्रीमियमनेस देता है. उसी को लगकर है ये सैटिन क्रोम ट्रीटमेंट जिसके ऊपर के साइड ग्लॉस प्लास्टिक पर कुछ डिजाइन प्रिंटेड है. यहाँ नीचे इसके ग्लो बॉक्स विच आई थिंक इज स्मॉलर. अब चलते हैं इसमें ऑफर किए गए इस 10.1 इंच यू कनेक्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ, विच इज अ नाइस एंड बिग फ्लोटिंग स्क्रीन that seamlessly connects your phone to your compass, paired with Japanese audio brand Alpine, which is a 9-speaker system with amplifier and subwoofer. Here how they are positioned. 2 front tweeters positioned on the dashboard,
2 front speakers positioned on the front door, 2 rear tweeters positioned on the upper side of the doors, 2 rear speakers positioned on the lower side of the doors, and ninth is the subwoofer positioned in the boot and amplifier which might be positioned under the boot space tray. Coming to the infotainment screen now. ये है इसका होम स्क्रीन मेनू और ऊपर है ये स्टेटस एंड कंट्रोल बार जिसे नीचे स्लाइड करते ही ये मेनू दिखेगा आपको जैसे सराउंडिंग कैमरा, टेम्परेचर, प्रोफाइल्स, नोटिफिकेशन, पैसेंजर वॉइस, डिवाइस मैनेजर। यहाँ नीचे इसका मेनू बार like music from where you can access the FM, Bluetooth connectivity, USB connectivity and AM. Next is the comfort which is the climate control screen basically. Next is the Jeep's navigation screen. Next is the connectivity screen which will display Apple CarPlay, Android Auto if enabled, and this is how it looks like. Next is the vehicle control and setting where you can access the surrounding camera and rear view camera, and this is the setting from where you can access the entire infotainment screen settings. And next is the apps menu from where you can access all the apps like AM radio, Android Auto, Apple CarPlay, audio settings, Bluetooth और बाकी ये सारे apps. सो अब स्क्रीन के नीचे यहाँ आइडल स्टॉप एंड गो का बटन, ESP का बटन यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का ऑन ऑफ करने का बटन, हजार्ड लाइट का स्विच, पार्किंग बीप को ऑन ऑफ करने का बटन और एयरबैग एक्टिवेशन की इंडिकेशन। अब नीचे यहाँ इसमें दिए गए हैं इसके ऑटोमेटिक ड्यूल जोन AC के फिजिकल बटन्स और साइड में फिजिकल डायल्स फॉर वॉल्यूम, पावर एंड फॉर ट्यूनिंग द FM। उसी के नीचे इसके मीडिया हब का एक USB-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट विद वायरलेस फोन चार्जिंग कंपार्टमेंट। यहाँ गियर लीवर के पास पोजीशनड है इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग का ब्रेक स्विच। अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट जिसका हम शूट कर रहे हैं वो 4x4 वेरिएंट नहीं बल्कि 4x2 का टॉप एंड वेरिएंट है और 4x4 ना होने के कारण आपको इसके जीप 4x4 सिस्टम का टेरेन सिलेक्टर यहाँ नहीं दिख रहा होगा। सो अगर आप 4x4 लेते हो तो यहाँ गियर लीवर के ठीक बाजू में आपको इसके 4x4 सिस्टम का टेरेन सिलेक्टर लीवर देखने मिलेगा जिसमें आपको सैंड, मड, स्नो और ऑटो जैसे टेरेन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑटो मोड जो है वो ऑटोमेटिकली गाड़ी के ड्राइव कैपेबिलिटी को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रोड कंडीशन और वैसे ही यहाँ नीचे आपको सिर्फ होल्ड का बटन दिख रहा होगा। बट अगर आप 4x4 ऑप्ट करते हो तो यहाँ 4 व्हील ड्राइव लो, हिल डिसेंट और 4 व्हील ड्राइव लॉक के बटन्स देखने मिल जाएंगे। अब ये है इसका फुली लेदर रैप्ड 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर सिलेक्टर। यहाँ सेंटर कंसोल पर दिए गए हैं 2 कप होल्डर्स और बीच में यहाँ इसके की को इस तरह रखने का स्लॉट। और ये है इसका फुली लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट विद स्लाइडिंग फंक्शन और इसके अंदर मिलता है ये डिसेंट स्टोरेज स्पेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द स्टीयरिंग व्हील which is a fully leather wrapped steering wheel with tilt and telescopic function। तो स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को ऑपरेट करने के बटन्स और कॉल को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने के बटन्स। स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड पर है इसके क्रूज कंट्रोल और स्पीड को सेट करने के बटन्स और यहाँ पीछे प्लेस किया गया है इसके मीडिया के कंट्रोल बटन्स। तो स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर है इसके सॉन्ग ट्रैक्स को चेंज करने के बटन्स। ऊपर प्रेस करने पर फॉरवर्ड और नीचे प्रेस करने पर बैकवर्ड और सेंटर में जो बटन है इसको प्रेस करने पर मीडिया सोर्स को चेंज कर सकते हो जैसे FM, AM और कनेक्टिविटी। और पीछे राइट हैंड साइड पर जो बटन्स है वो इसके वॉल्यूम को एडजस्ट करने के बटन्स और सेंटर में ऑडियो को म्यूट करने का बटन। यहाँ पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस है इसके हेडलाइट का स्विच लीवर और राइट हैंड साइड पर प्लेस्ड है वाइपर कंट्रोल्स के लीवर। स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ प्लेस्ड है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अब चलते हैं इसके स्पीड इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की तरफ जो कि है एक 10.2 इंच का कस्टमाइजेबल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वेयर यू कैन सिलेक्ट 2 स्पीड क्लस्टर्स लाइक दिस नॉर्मल, राउंड RPM and speedometer dial and this speedometer. In this menu where you can
see all these complications like trip information, average information, option to also view the engine oil heat, tire pressure monitor, and the battery wattage, and also about the media. स्टेयरिंग के राइट हैंड साइड पर दिखेगा आपको इसके हेडलाइट को ऑन ऑफ या ऑटो पर रखने का डायल, और बीच में है फ्रंट फॉग और रेयर फॉग के बटन्स, और बाजू में है ये क्लस्टर ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के स्क्रोलर, और बाजू में हेडलाइट का लेवल है। यहाँ नीचे इसके रबर पैडेड ब्रेक और एक्सेलरेटर पैडल्स विथ नाइस फुट रेस्ट। अब बात करते हैं इसके फ्रंट सीट्स की, जो कि फुली लेदर रैप्ड सीट्स है विथ नाइस कॉन्ट्रास्ट वाइट स्टिचिंग गिविंग देम द प्रीमियम लुक। और ये जो इस पर परफोरेशन डॉट्स दिख रहे हैं वो है इसके सीट वेंटिलेशन के डॉट्स टू प्रोवाइड यू कंफर्ट एंड कीपिंग यू कूल एंड एट ईज फॉर ऑल द लॉन्गेस्ट जर्नीज। ड्राइवर साइड सीट और को पैसेंजर साइड सीट 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, और सिर्फ ड्राइवर साइड सीट जो है वो 2 मेमोरी सीटिंग पोजीशन के साथ आता है। यहाँ साइड में पोजीशन है इसके सीट्स को रिक्लाइन या एडजस्ट करने के स्विचेस, और ये है इसके लंबा सपोर्ट के कंट्रोल के बटन्स। सो अब चलते हैं इसके रेयर सीट्स की तरफ, एंड दिस इज हाउ द रेयर सीटिंग लुक्स। रेयर सीट्स के बारे में बात करूँ तो सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है, 60-40 स्प्लिट रेयर सीट्स है ये। रेयर सीटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही कंफर्टिंग है। You also get 3 headrests for rear passengers. You can see how nice and spacious the legroom is. Headroom decent है, but if you open the sunroof shade, you get the nice expanded headroom. Taller passenger like 6 foot might face minor issues. ये है इसका rear center armrest with 2 cup holders. उसी के साथ यहाँ rear AC vents. उसी के नीचे यहाँ एक USB का A का पोर्ट, और यहाँ नीचे कंसोल के बॉटम में एक 12V DC का पोर्ट। यहाँ सीलिंग पर प्लेस्ड है इसका सॉफ्ट क्लोज ग्रैब हैंडल विथ रूफ माउंटेड कैबिन रीडिंग लैम्प्स इन देम, और मिलता है ये मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। एंड द रेयर पार्सल शेल्फ टू कीप स्टफ लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड टिश्यूज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बूट स्पेस। सो इसकी जो बूट है वो 3 तरीके से एक्सेस की जा सकती है। पहला है इसके की पर दी गई ये बूट ओपनिंग बटन ऑन डबल टैपिंग इट। दूसरा है इसके सीलिंग के फ्रंट कंसोल पर दिया गया ये बूट ओपनिंग का बटन, और तीसरा है इसके बूट लीड पर दिया गया स्टैंडर्ड बूट ओपनिंग बटन। तो इसमें मिलता है 438 लीटर्स की बूट स्पेस, और अगर इन रेयर सीट्स को गिरा दिया जाए तो स्पेस और भी एक्सपांड किया जा सकता है। यहाँ बूट लगेज ट्रे के नीचे प्लेस्ड है इसका फुल साइज स्टील ड्रम स्टेपनी व्हील, और बूट के एंट्रेंस के लेफ्ट पर ही प्लेस्ड है इसका बूट क्लोजिंग बटन। टैप करते ही बूट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सो लेट्स गेट ड्राइविंग नाउ, बट बिफोर ड्राइविंग लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू समथिंग। जीप में एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो जीप की सारी गाड़ियों में और सारी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है, और वो ये है कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी ना हो और गाड़ी को ड्राइव मोड पर डालते हो, और फिर जैसे ही आप एक्सलरेट करते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक डिसएंगेज नहीं होगा और गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन फिर जैसे ही आप इसके सीट बेल्ट पहनते हो और फिर एक्सलरेट पर टैप करते हो, इसका हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो जाता है एंड यू आर ऑल सेट टू ड्राइव। So coming to the engine now, Jeep Compass is available with only one engine option, जो है 2 liter multi-jet 2 turbo diesel engine, which is the standard engine across all the variants of the Compass, which gives 170 bhp of power at 3750 rpm, generating 350 Nm of torque at 750 rpm to 2500 rpm, which is mated to a 9-speed automatic transmission. तो इसका ये जो engine है वो FCA यानी Fiat Chrysler Automobile made engine है, जो बहुत ही अच्छा और refined engine है. In fact, it's so good that even Tata Motors and MG borrow the engines from Jeep. This 2-liter turbo engine is even so quick कि ये 0 to 100 km सिर्फ 10 seconds में कर लेता है. And being the monocoque design of the chassis, the handling of the SUV can be compared to none in its segment. It's a totally fun to drive SUV in the market. Coming to the fuel tank and mileage,
It comes with a capacity of 60 liters of fuel tank, which in city it gives around 10 to 11 km per liter of mileage, and on highway it gives around 12 to 13 km per liter. But if you drive good, it might give you around 15 to 16 km per liter mileage. So now coming to the suspensions, front में आपको मिलता है MacPherson strut with lower control arm और रेयर में मल्टी लिंक सस्पेंशन विद स्ट्रट असेंबली। तो इसमें ऑफर किए गए हैं ये एनहांस्ड इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद FSD यानी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग, जो बहुत ही सुपीरियर ड्राइविंग डायनामिक्स डिलीवर करते हैं व्हाइल यू ड्राइविंग ऑन रोड या ऑफ रोड। और प्लस जीप कंपास में मिलते हैं ये एक्सक्लूसिव लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक स्ट्रक्चर्ड सस्पेंशन, जो कंबाइन किए गए हैं जीप कंपास के सेगमेंट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव डैम्पिंग यानी FSD सिस्टम के साथ। अब इसके ये लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का एक एग्जांपल आपको इस शॉट में दिखेगा, और कैसे अभिषेक पवार इस शॉट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो आप देखो। ये चीज़ क्यों बताना चाह रहा था कि ये हर एक कस्टमर को हम बताते हैं, जो भी कस्टमर विजिट करता है हमारे यहाँ पे अंधेरी शोरूम में, तो हम हर एक कस्टमर को बता के दिखाना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जीप कंपास कितनी फर्म और कितनी स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द ऑल 4 चैनल इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। ये आप किधर भी चढ़ा उतार सकते हो, मतलब ये आप रेगुलर लाइफ में तो डिवाइडर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सस्पेंशन कितने हैवी है। अगर हमारे शोरूम पे 10 कस्टमर आते हैं और 10 कस्टमर को हम ये करके दिखाते हैं दिन भर में, तो आप सोचिए अगर हमारी नॉर्मल गाड़ी से हम 2-3 बार अगर डिवाइडर चढ़ जाए तो तीसरी बार हमारा सस्पेंशन टूट जाए। तो ये चीज़ बताना चाहते हैं कि जीप कंपास कितनी स्ट्रॉन्ग है। So now to experience this and to know more about Compass, contact Mr. Abhishek Pawar from Landmark Jeep Andheri, who will guide you and make you experience about its capabilities, safety and more. So now to the brakes. So obviously you get disc brakes on all the 4 wheels. तो इसमें ऑफर किया गया है RBS यानी रेन ब्रेक सपोर्ट। जैसे वेट या रेनी कंडीशंस में ये ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ये पीरियोडिकली छोटे छोटे अमाउंट के ब्रेक प्रेशर को अप्लाई करता है, जिससे अगर इसके फ्रंट ब्रेक रोटर्स पर पानी जमा हो तो पहले वो उसे निकाल देता है। कमिंग टू द सेफ्टी नाउ, इन सेफ्टी इट इज अ लॉन्ग लिस्ट, बट ये लिस्ट भी उतनी डिटेल्ड नहीं है कि कंपास कितनी सेफेस्ट और वेल स्ट्रक्चर्ड SUV है। सो इसके सेफ्टी लिस्ट में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एडेप्टिव ब्रेक लाइट्स, एक्टिव टर्न सिग्नल्स, TCS यानी ऑल स्पीड ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, ड्यूल नोट इलेक्ट्रिक हॉर्न्स, इलेक्ट्रॉनिक रोल मिटिगेशन, hill start assist, seat belt with lap pretensioners, second row center passenger 3-point seat belt, second row seat belt reminders, reverse parking camera with reverse park assist sensors, rear wiper with defogger, double crank prevention system, dual front airbags, front passenger seat belt alert, total 6 airbags, occupant detection system, auto hold for automatic, 360-degree camera, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, लेजर वेल्डेड रूफ एंड डोर्स, डायनामिक स्टीयरिंग टॉर्क यानी DST, HBFC यानी हाइड्रोलिक बूस्ट फेलियर कंपेंसेशन, RBS यानी रेन ब्रेक सपोर्ट, 28 acoustic baffle zones, 70+% highest in the segment, galvanized high tensile strength, steel used in monocoque body structure, 5-star Euro NCAP and Australia NCAP safety ratings. So only safety features like 6 airbags are available in variants like Limited O, Black Shark O and Model SO. Auto hold which is not available in Sport, and 360-degree camera which is only available in Model SO. So coming to the dimensions, length में है ये 4405 mm, width में है ये 1818 mm, हाइट में है ये 1640 mm विथ रूफ रेल्स, व्हील बेस है इसका 2636 मिलीमीटर्स का, ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी 207 मिलीमीटर्स की, और इसकी जो एक वेरिएंट आती थी ट्रेल हॉक के नाम से उसमें 219 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। कर्ब वेट है 1597 किलोग्राम्स का, अप्रोच एंगल 16.1 डिग्री, ट्रेल हॉक का जो है 23.6 डिग्री का है, रैम्प ब्रेक ओवर एंगल
22.5 degrees and departure angle of 31.4 degrees. अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो द 2024 Jeep Compass is one of the most capable, safest and compact SUV. You also get the option to choose between 4x2 and 4x4. The drive and feel of the Compass has been satisfying, which has evolved over 7 years of the Compass journey. Premium leather interiors, the convenience of the automatic transmission, the overall drive feel, the ruggedness with the premiumness of the Compass. But then what's keeping it away from the highest sales? Well, is it the size? Same 7-year-old design or poor after sales service? But definitely the price point compared to its competitors available in the market today, like Kia's Seltos, Tata's Safari or Harrier, Mahindra's XUV 700, MG's Hector, Hyundai's Tucson, or Citroën C5 Aircross. And now even the Thar rocks a practical 5-door Thar, which are even larger in size and cheaper compared to Compass. But the only way to know Compass better is when you drive one. It's surely one of the best, rugged and safest SUV available in the market. So now, as this is a dealership review, I have added a new bracket of service and maintenance. So now let Abhishek Pawar explain you the current ongoing prices. Also, he'll explain you the service and maintenance cost and the warranty. इसका तो मैं आपको कंपस की प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। अब ये साल 2023 में बहुत सारी चेंजेस हमने लेके आए कंपस में, जहाँ पे हमने मिड टॉप वेरिएंट को, मतलब मिड वेरिएंट को भी टॉप वेरिएंट के फीचर्स दे दिए। तो यहाँ पे आज मार्केट में 25 से 30 लाख के बजट में बहुत सारे कस्टमर्स है। तो हमने हमारी जो गाड़ी पहले जो टॉप लाइन थोड़ा एक्सपेंसिव जाती थी, तो जहाँ पे हमने टॉप लाइन के फीचर्स मिड वेरिएंट में लेके आए, तो हमने एक 30 लाख के ब्रैकेट में हम लेके आ रहे चीज़ें, जो मैं आपको अभी प्राइसिंग दिखा के आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जहाँ पे आज मार्केट में फर्स्ट वेरिएंट मेरा है 30 लाख रुपीज़ का, दैट इज़ लॉन्जिट्यूड ऑप्शन, डीजल ऑटोमेटिक। सेम प्रोडक्ट डीजल ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स मैनुअल है, वो आपको आता है 24,14,000 रुपीज़ में ऑन रोड। उसका एक शोरूम प्राइस है 18,99,000। प्लस मैंने जैसे आपको बताया डीजल मैनुअल वेरिएंट में जो मिड टॉप वेरिएंट जो अभी से 6 महीने पहले हमने जो गाड़ी लॉन्च किया डीजल मैनुअल, फिर आपको बताता हूँ डीजल मैनुअल, उसका एक शोरूम प्राइस है 24,83,000। वो आपको ऑन रोड आएगी 31,11,000 रुपीज़ में। प्लस अभी उसके बाद जो टॉप लाइन है हमारी, टॉप लाइन में मेरे पास लिमिटेड भी है जो 26,33,000 में उसका एक शोरूम प्राइस है। ऑन रोड वो जाता है 32,92,000। ये डीजल मैनुअल लिमिटेड वेरिएंट का कॉस्ट है। 2 टॉप लाइन है, 3 टॉप लाइन है, एक लॉन्जिट्यूड ऑप्शन लिमिटेड और एक मॉडल एस। अभी मॉडल एस का एक शोरूम प्राइस आपको बताऊंगा 28,33,000 में आपको मॉडल एस डीजल मैनुअल का एक शोरूम प्राइस आएगा। प्लस उसका जो ऑन रोड प्राइस रहेगा 35,39,212। ये डीजल मैनुअल टॉप लाइन का कॉस्ट है। तो 35,39,212 ये आपका डीजल मैनुअल मॉडल एस का प्राइस है। और अभी इसमें बहुत बड़ा गिमिक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, अभी जो ये मंथ में दिवाली से पहले अगर आप आते हो और रिटेल करते हो और ये गाड़ी अगर स्टॉक में होती है, तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं। 2 लाख रुपीज़ आपको डिस्काउंट मिलेगा एक शोरूम प्राइस पे। इंश्योरेंस पे हम कुछ हमारा मार्जिन है वो हम आपको देंगे ज़रूर, और कुछ स्पेशल डिस्काउंट करके कुछ 10-20 हज़ार रुपये हमारे हाथ में होता है, तो हम आपको पास ऑन करेंगे। अगर आप गाड़ी एक्सचेंज करना चाहते हो तो एक्सचेंज ऑफर भी हमारे पास कंपस के ऊपर 25,000 है, मेरिडियन के ऊपर भी है, और कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी हमारा 15,000 to 20,000 रुपीज़ कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी है दोनों वेरिएंट में, तो आपको वो भी पास ऑन होगा। तो मैं जितना जल्दी चाहूँगा, देखिए स्टॉक बहुत लिमिटेड है, जितना आप जल्दी आएंगे आप उतना जल्दी गाड़ी बुक कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी लाइनअप्स बहुत है। तो दूसरा मैं अभी प्राइस के ऊपर आऊँगा, डीजल ऑटोमेटिक लॉन्जिट्यूड वेरिएंट। सो सबसे पहला टॉप वेरिएंट नहीं, मिड मतलब स्टार्ट बेसिक एंट्री लेवल मॉडल, दैट इज लॉन्जिट्यूड 24,33,000 में एक शोरूम प्राइस आएगा, और उसका ऑन रोड प्राइस रहेगा 30,79,000 में। सेकेंड वेरिएंट जो आता है दैट इज लॉन्जिट्यूड ऑप्शन, जो अभी रिसेंटली वेरिएंट लॉन्च है, जिसके हमारा जीप का ज़्यादा फोकस है, और मैक्सिमम कस्टमर्स ये गाड़ी की डिलीवरी आप अगर ऑन रोड देख रहे हो तो मैक्सिमम कस्टमर्स ये गाड़ी ले, तो ये वेरिएंट के ऊपर ज़रूर यहाँ पे शोरूम पे आके मुझे मिलना और ध्यान देना ये चीज़ पे। 26,83,000 रुपीज़ का इसका एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस आपका जाता है 33,57,000 में। तो 33,57,000 माइनस 2 लाख माइनस 50,000 और माइनस हमारे पास कुछ मार्जिन स्पेशल डिस्काउंट, अगर गाड़ी स्टॉक में होती तो 15-20 हज़ार रुपये देके हम ये डील क्लोज करते हैं। अब मॉडल एस का मैं अगर आपको बताऊंगा, जो हमारा टॉप लाइन है डीजल ऑटोमेटिक, 30,33,000 में एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस आपको 37,81,049 में आपको गाड़ी मिल जाएगी।
माइनस जो डिस्काउंट मैंने आपको बताया, जो 2 लाख रुपीज़ एक शोरूम प्राइस, 70,000 रुपीज़ आपको इंश्योरेंस, वेरिएंट वाइज इंश्योरेंस का प्राइस वेरी होगा। ज़रूर विजिट करिए। मैं आपको स्टार्ट वेरिएंट, मिड वेरिएंट और टॉप लाइन का ही प्राइसिंग आपको मैंने बताया है। बाकी के जो प्राइसिंग है आप शोरूम विजिट करेंगे तो आपको ज़रूर हम बताएंगे। हम आपको पहले गाड़ी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जैसा आपने देखा कि हम किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स है। तो अभी बात करेंगे मेंटेनेंस पैकेज और एक्सटेंडेड वारंटी के बारे में। कंपनी 3 साल का वारंटी दे रही है, प्लस मैं आपको कंपनी की पॉलिसी, मैं आपको इसमें PDF भी दूंगा। बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज है जो आज मार्केट में दूसरा कोई ब्रांड्स नहीं दे रहा है, और ये हम कॉन्फिडेंट है बोलने के लिए क्योंकि हम पिछले 8 साल से हर एक कस्टमर को दे रहे हैं। कंपनी 3 साल का वारंटी देती है, प्लस 1 लाख किलोमीटर्स कवर होते हैं उसमें, प्लस एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप लेते हो, मिड वेरिएंट का लेते हो एक्सटेंडेड वारंटी, तो एक्सटेंडेड वारंटी का आपको 38,000 रुपीज़ आपको प्राइस आएगा। टॉप वेरिएंट का अगर आप लेते हो तो वो 45,000 रुपीज़ में एक्सटेंडेड वारंटी आएगा। सारी चीज़ें कवर रहेगी इंजन के साथ में, एवरीथिंग। हमारी एक ऐसी कंपनी है जो गियर बॉक्स का भी वारंटी देती है और सस्पेंशन की भी वारंटी देती है। फिर से आपको बताऊंगा, कोई भी ब्रांड गियर बॉक्स और सस्पेंशन की वारंटी नहीं देती, जो हमारी कंपनी आपको, जीप कंपनी आपको देती है। गियर बॉक्स और सस्पेंशन की वारंटी, इंजन की वारंटी आती है, प्लस 24/7 रोड असिस्टेंट है ऑल ओवर इंडिया में। हमारी ये व्हीकल 24/7, अगर आप कभी भी कॉल करेंगे, आधे घंटे में मैक्सिमम 45 मिनट्स में आपको इस सर्विस मिलेगी फ्लैट बेल्ट का। एंड हाउ मेनी टाइम, साल भर में आपको कितने भी बार आपको करना है आप कॉल करिए। मैं आपको मेरा RSA फैसिलिटी का नंबर भी आपको इसमें फ्लैश हो रहा है, अगर आप यहाँ देख सकते हो। 24/7 RSA फैसिलिटी का नंबर है, तो ये रोड साइड असिस्टेंस का कॉल है, नंबर है। प्लस ये हो गया, और मैं आपको बताऊंगा सर्विस के बारे में। ये गाड़ी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। पहले आपका माइंडसेट क्लियर कर दूं कि आज मार्केट में जितनी गाड़ियां बन रही है, हुंडई, मैं किसी का नाम मतलब उस तरीके से नहीं लूँगा, कोरियन, जापानीज़ गाड़ियाँ जितने और चाइनीज़ कार, जितनी भी गाड़ियाँ मार्केट में चल रही है, वो अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट में अगर आपको लो नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज में ज़रूर लो होती है। ये गाड़ी पूरी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ से गाड़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं 43 राइट हैंड ड्राइव कंट्रीज़ में, तो आप समझ सकते हो ये गाड़ी की क्वालिटी कैसी होगी। दूसरी चीज़, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में जीप, सारी जीप हमारी मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में बनी है। तो मैं आपको ये चीज़ फील करने के लिए, आपको टच एंड फील करना है, गाड़ी के बारे में थोड़ा रीड करना है। मेरे पास कुछ वीडियोज़ हमने बनाए हैं, वो वीडियोज़ आपको ज़रूर शेयर करूँगा, अगर आप मुझसे मांगेंगे, आप मुझे आपका नंबर देंगे तो। दूसरा, मेंटेनेंस वाइज अगर आप देखेंगे इंडियन अगर आगे का ब्रेक पैड की अगर मैं बात करूं तो 2,500 रुपये, पीछे के 3-3,500 रुपये के, तो आप समझ सकते हो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कम है। सर, अगर हमारा मेंटेनेंस का हमने मेंटेनेंस पैकेजेस भी रखे हैं, जहाँ पे आपको अगर आप 50,000 रुपीज़ हमें देते हैं, 50,500 रुपीज़ देते, तो 5 साल का 3 साल का आपको सर्विस कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको 3 साल पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो 50,000 आप डिवाइड बाय 3 ईयर्स कर दो, तो ये हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है। फिर से आपको बताऊंगा, 50,000 डिवाइड बाय 3 ईयर्स, तो ये 3 साल का हम 50,500 रुपये ले रहे हैं मेंटेनेंस पैकेज। तो देखिए, आप ये देख के समझ सकते हो गाड़ी का मेंटेनेंस कितना लो है। फिर से बताऊंगा, ये गाड़ी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में बनी है, तो ये चीज़ टच एंड फील करना है तो आपको उसके लिए शोरूम में आना होगा। टच एंड फील करिए, टेस्ट ड्राइव लिए बगैर आपको गाड़ी नहीं समझ में आएगी। पहले टेस्ट ड्राइव, बजट का सोचिए मत, मैं आपको फिर बताऊंगा, बजट आपको सोचना नहीं है, आपको ये गाड़ी पहले टेस्ट ड्राइव लेना है। ज़रूरी नहीं हमसे गाड़ी लेना है, लेकिन टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेना सर। आप ज़रूर, या तो आप हमारी गाड़ी लेंगे या तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। So that's all about this 2024 refreshed Jeep Compass. Thanks for watching AVG Automotive. Subscribe and tap the bell icon for more upcoming reviews. Thank you.